Good afternoon, everyone. My name is Enakshi, and it's a pleasure to be here on behalf of PNG to talk about one of the campaigns and the movements that we had taken up. Now, yes, PNG brands reach over 5 billion consumers, right? And with that kind of reach, we recognize the responsibility that we have to not just delight the consumers with superior products, but also leveraging our reach to actually improve lives beyond just the way our products can. That responsibility is what we call being a force for growth and a force for good. We want to connect and engage with consumers on shared values and beliefs, on those that truly matter to them, and then try and find a meaningful and authentic way for the brand to play a role. This ethos is what we took to when we wanted to design an initiative on Wix. Coming to the next slide, for generations, Wix has stood for not just cure, but care. So, when it's about putting that Wix vapor rub on someone who has a blocked nose, giving a Wix cough drop to someone, that act is not just to cure someone, but it's an act of care for someone who truly, truly cares about your well-being. We wanted to take that care and elevate that into a way that is representative of the evolving society around us and redefine what that care can mean. And with that, we came to this particular articulation, which is everyone deserves a touch of care, and that care goes beyond biological blood ties, it goes beyond gender, it goes beyond anything that you stereotypically associate with what family can stand for, because at the end of the day, family means care and utmost care and love that is there. Now, with this, what we then wanted to do with our agency partners is to try and find the right stories to spotlight, stories that have those people who have experienced this transformational power of care that I'm talking about, and then they have gone on to become a beacon of hope for more people around them. So it doesn't just stop with them, but how have they then taken that forward into almost like a multiplier effect. Over the years, what we have done is we've tried to truly own these kind of stories and almost, like I said, elevate care into different aspects of that. We've tried to represent different stories of care and family beyond, like I said, blood relations or gender. Our most recent work post-COVID was about how even caregivers, which was frontline workers during COVID times, deserve that touch of care. Prior to that, we had spoken about how people who suffer with very rare diseases don't get that kind of inclusion or acceptance in society, and especially when it's children, they face a tough time getting adopted. So how can we change that narrative? But the success of all of these movements year on year, with the kind of love and admiration we've received from our consumers, the kind of trust and loyalty that we've received, all started with the first edition of the Touch of Care movement that we launched. The first story was crucial for us to establish this intent of care going beyond anything else, and that is when we came across the work that Sri Gauri was doing. And we chose to sort of work with her and spotlight her journey, which was truly a journey of motherhood. Motherhood that rises above everything else, motherhood that is about care for the people that she has taken on the responsibility for, and care that does not know any gender, that does not know any other barriers, but just true utmost care. We had also launched a certain fund so that we can try and help her expand her impact as well. And what has truly been remarkable is to see the kind of recognition this film gets even today. I will play the film for you, but I just want to say that it's been an honor working with you and having this continued relationship with you. And a lot of you may have seen this film already. I have seen it multiple times, but it never fails to warm the heart. With that, I'll play the film and then request Sri Gauri to come and join us. मम्मी नाराज तो होने ही वाली। वो तो चाहती है कि मैं डॉक्टर ही बनूं। इसने हॉलीडेज खत्म और बोर्डिंग स्कूल शुरू। एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं दिया। मम्मी भी ना। मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई। 18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है।
मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं, और मेरी असली माँ वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। फिर एक दिन मम्मी आई। बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गई। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई, मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी मम्मी कम और दोस्त ज़्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कढ़ी चावल, और रात में हॉरर फिल्म। डर लगता है, पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी? मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, पर फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट्स सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, लॉयर बनूंगी मेरी मम्मी के लिए। Now, this was the journey till we created the film. What happened after? I'd like to invite Gauri to talk about that. Thank you. पहले मैं बहुत मोटी थी, बहुत ज़्यादा जाती थी, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, लिफ्ट से के लोग मुझे देख के कतरा जाते थे। और मैंने आपकी एडवर्टाइज देखने के बाद गोली खा ली और मैं दुबली पतली हो गई हूँ। मुझे यहाँ बैठने के पहले पहले ऐसे ही लग रहा था, है ना? और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इस तरीके से आती है और कुछ इस तरीके से चली जाती है। पर एक एडवर्टाइज ऐसी चीज़ है कि जो हमारी सोच बदल देती है। हम कभी कभी किसी काली कलूटी को भी बोल देते हैं ये ब्रांड की दवा लगा ले या तो खा ले। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आप समझने की, आप बहुत होशियार हो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, थैंक्स। मैं भारत की नागरिक हूँ, जहाँ मेरी पहचान एक गाली से शुरू होती है। मेरा वजूद ही एक गाली है। गाली से ताली और माँ तक बनाने के सफ़र के लिए मैं आपकी ऋणी हूँ। सिर्फ लोगों का नज़रिया बदल गया ये आपके एक फिल्म के वजह से। लोग कभी ये नहीं समझ पाते थे कि जेंडर क्या है ना? लोगों के दिमाग में हमेशा यही खिचड़ी चलती रहती है। मैं हमेशा बोलती हूँ मदरहुड इज अ बिहेवियर टू लव समवन, टू केयर समवन। शायद बोलना और दिखाना, आप देखिए जैसे उन्होंने दो लोगों ने पहले कहा कि एडवर्टाइज कितना इम्पैक्ट करती है। बच्ची बोली जा रही है, अब जब लोग मेरा हाथ देखा, जब मेरा फेस देखा, आपने सडनली तालियां बजाई। जिन्होंने देखा होगा उन्होंने भी और नहीं देखा उन्होंने। कितनी सारी चीजें बदल जाती है। लोग जिस तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ पॉइंट, बुलेट पॉइंट छोड़ देते हैं, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने छोड़ा है। एडवर्टाइज करने के बाद मुझे लगा कि जिंदगी में जिस तरीके से तूफान आते हैं चले जाते हैं, पर कोई कोई लोग रुक जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी चेंज कर देते हैं। जी हाँ, मेरी भी ज़िंदगी उसी तरीके से चेंज हुई है। और सच मानिए मुझे यहाँ सिखा पढ़ा के खड़ा नहीं किया है ना? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रेखा राव, धन्यवाद माँ।
हाँ, मैं ऐसी हूँ, है ना? उन्होंने जो छोटा ग्रांट दिया, अभी मैं एक गायत्री की माँ थी, आप समझने की कोशिश करो, अब मैं 20-25 की माँ हूँ। ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अजीज सा घर, मतलब नानी का घर, जहाँ पे हम लोग अबेंडेड वर्ड, ये मुझे थोड़ा अंग्रेजी लगता है, दुष्ट लगता है, हम उन बच्चों का ख्याल रखते हैं जिनकी माँ सेक्स वर्कर्स है, एम्पावर वुमेन है, जो सिंगल मदर है, स्ट्रांगली अपने बच्चों को संभालती है, उनके साथ हम काम करते हैं, जिसका नाम है अज्जी का घर, जिसके लिए भी छोटा सा फंड हमको प्रॉक्टर लंगैम ने दिया इसके बाद। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हुआ, लोग जो हमको जिस तरीके से देखते थे कि ये लोग रास्ते पे ताली बजा सकते हैं, उसकी सोच लोगों ने बदली है। लोगों ने LGBTQI के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स को जो ब्रेकिंग द बैरियर्स वगैरह जो आप बड़े बड़े शब्द बोलते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं थी। ये एडवर्टाइज ने लोगों की सोच बदल दी है, लोग हमें उस तरीके से देखते हैं। अब लोग शायद हमसे डरते नहीं है। मेरे जब छोटे बच्चों को मैं स्कूल में छोड़ने चले जाती हूँ, तो लोग जो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास कंप्लेंट करते, साईची आई आपके साईनी ने मेरा स्कूल में बैग फाड़ दिया, साई की मम्मी आपके बच्चों ने ये किया। अब समझने की कोशिश करो, जिम्मेदारी का एहसास है, आप समाज के एक नागरिक हो, आप क्या देते हो। एडवर्टाइज कैन चेंज सोच, विचार, सब चीजें बदल सकती है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे जिंदगी में आप आए, बाहर आई। ज्यादा कुछ बोलूंगी तो रो दूंगी। मैं बहुत कम फिल्म देखती हूँ क्योंकि बाद में मुझे सब याद आता है कि बच्चे के साथ, तो इसलिए, और वैसे भी 1 मिनट ही रह गया, ये अच्छा किया है यार, वरना मैं बोली चली जाती थी। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ बोला होगा तो माफ कर दीजिएगा, शुक्रिया।